Hey all, Ankit Kishore this side from Strictly team and I welcome you back to my channel. So I'm again making videos after so long and I got a reason to make so मेरे को लगा चलो बनाता हूँ and at the same time last time जब मैंने वीडियो बनाया था तो फिर उस पर मैंने अपडेट दिया था कि going forward मैं कुछ लर्निंग वीडियोस बनाऊंगा and I didn't make so I have my own reason for it. Okay, तो मैं वो explain करता हूँ. But before that, here I'm giving you update what happened the last 3 months and why all of a sudden I thought कि चलो यहाँ पे मेरे को update देना चाहिए. Okay, so yeah, I'm just giving update about all these 3 months and how it went for me and everything I'm going to say here. So before everything, see, मैं पहले बता देता हूँ मैंने last 3 months में 19% of the time I just traded in this account. This is my small account of 41 lakh rupees. Okay, so this is where I traded majority of the time and don't see this loss. Okay, this is from the covered call here. Okay, this is the covered call position which I'm still holding and I will keep on holding. Okay, this is for August series and reason for that, see, I already booked like 2.5 3 lakh rupees profit, 2 lakh almost profit in my portfolio and it's still gaining a bit. So मेरे को जो yearly target होता है, okay, and right now I am not focusing on just getting into a investment और उसे फिर hold करूँ for very long. No, I'm not into that thing. ओके, सो मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बहुत करता हूँ. ओके, एंड आई हैव एक्टिवली स्टार्टेड मैनेजिंग माय ओन पोर्टफोलियो बिफोर दैट, बिफोर दिस ईयर. I used to be like, okay, I just entered in a position, in an investment position, I will just keep on holding for long. But now I'm changing it a bit. Okay, so मैं इसे reshuffling पे ज़्यादा रखूंगा focus और rebalancing करता रहूंगा अपने holdings को, and that's what I'm doing, and that is the reason I took this covered call, because I feel like 25,000 is where market will stay for a bit before giving any update up move. Okay, so इसलिए मैंने ये covered call लिया. This the reason for explaining this is because of this MTM negative that you are showing. Actually this is not MTM negative. Excluding this I think I gained something, whatever it is. See, so अब मैं update यहाँ पे देता हूँ कि मैंने क्या profit and loss किया है. ठीक है, so in the last 3 months, चलो मैं directly इस पे आता हूँ. Last 3 months by saying from May to June, July. Okay, so I have made 2.8 lakh, which is like 7% on the capital. Okay, in the last 3 months, I know this is very low, but still, I'm just trying to revive myself from the lowest point that I was. और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैं स्लोली सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा. सी बिफोर दैट, दिस जुलाई मंथ टिल हेयर ओनली आई वाज क्वाइट अप. ओके, उसके बाद फिर ये जो पूरे टाइम गए, ठीक है, यहाँ पे आई लॉस क्वाइट अ बिट और मैं जुलाई में ऑलमोस्ट 2.5% पॉजिटिव था, 2.5 3% ऑलमोस्ट पॉजिटिव था. बट लास्ट में मैंने काफ़ी लॉस दिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये एंड दीज आर कंटिन्यूस लॉसेज. ओके, 22 ऑफ जुलाई, 23, 24, अगर आप यही तीनों को मिला लोगे तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.5%. तो मैक्सिमम DD that I touched here was 2.4%, and during this complete phase I have never touched more than 2.5% DD. That is the maximum, by the way. Okay, or 2.4% is the maximum DD that I've touched here. और उसके बाद फिर अगेन आई कलेक्टेड सम, देन अगेन आई लॉस सम, एंड दिस इज स्मॉल लॉस. सो अभी DD में मैं थोड़ा बहुत ही हूँ, लगभग 0.4% DD में हूँगा मैं. ओके, दिस इज अबाउट अ स्मॉल अकाउंट. सो यहाँ पे जुलाई वाज आल्सो गोइंग रियली गुड फॉर मी, बट ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ दीज फ्यू लॉसेज आई क्लोज्ड इट विथ. सी, मैं यहाँ पे एक्सेल सीट बना रखा हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ. सी, मे में मैं बाय द वे स्विंग ट्रेडिंग पे अब काफ़ी फोकस कर रखा हूँ. ओके, और गोइंग फॉरवर्ड मैं स्विंग ट्रेड्स में और एक्टिव होने वाला हूँ. ओके, अभी पिछले 10-15 दिनों से मैं एक्टिव नहीं हूँ. ओके, दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे थोड़ा रिटर्न कम हुआ, बट यहाँ से यहाँ पे काफ़ी गेन हुआ था, 1.8% बना है. रीज़न अभी भी इस रेंज में क्योंकि मैं रिस्क अभी कम ले रहा हूँ, क्योंकि आई एम जस्ट स्टिल गेटिंग माई हैंड्स विद स्विंग ट्रेड्स. ओके, और इसलिए अभी मैं स्लो ही जा रहा हूँ. और गोइंग फॉरवर्ड मैं स्विंग ट्रेड्स पे बहुत फोकस करने वाला हूँ, बीट इक्विटी स्विंग ट्रेड्स, बीट कैश स्विंग ट्रेड, सॉरी, बीट FNO स्विंग ट्रेड. ओके, मीन्स इक्विटी के FNO में या फिर डायरेक्टली कैश स्टॉक्स पे मैं एंटर करूँगा. सो दिस अबाउट स्विंग ट्रेड्स, और यहाँ पे फोकस मेरा काफ़ी बढ़ रहा है. और मैं सोच रहा हूँ इस रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोज़ भी बनाऊंगा. जैसे किसी स्क्रिप्ट में मैंने एंटर करा और मैंने उसे एग्जिट किया, बीट इन लॉस और प्रॉफिट, इफ आई फील लाइक ओके मेरे को यहाँ पे एक अपडेट देना चाहिए क्यों मैंने एंटर किया, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्सपेक्टिव, तो मैं वैसा वीडियोज़ बना सकता हूँ. ओके, और मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट भी है जिसमें मैंने एंटर किया था, एंड दे एक्चुअली परफॉर्म रियली गुड, एंड सम ऑफ देम एक्चुअली गेव मी एसएल इट ऑल्सो, सम एट कॉस्ट, सम एट रियल एसएल विच आई पुट इन. सो वो सारा अपडेट है. मैं मे बी एक और वीडियो बना दूंगा इस वीकेंड को, जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अपने स्विंग ट्रेड. बाय द वे, मैं कुछ स्विंग ट्रेड्स जिसमें एंटर किया था मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि मैंने इन स्विंग ट्रेड्स पे एंटर कर रखा है. लास्ट few weeks, like last 2 weeks, I have not given any update on swing trade there also, but मैं जो भी लिया है मैंने इस बीच में एंट्री, एक या दो ही स्क्रिप्ट में एंटर किया है मैंने, वो भी मैं अपडेट दे दूंगा. ओके, सो दिस अबाउट इट. सो मे में मैंने इंट्राडे, बाय सेइंग इंट्राडे आई मीन टू से, जो मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एक्सपाइट 0DT 1DT जो करता हूँ, उनमें मई में मैंने 3.2% बनाया था, जून में 1.5, एंड जुलाई नेगेटिव, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया वो जो पूरा लॉस है वो इसी से. एंड बाई एंड टॉकिंग अबाउट स्विंग,
तो मई में 0.5% का लॉस था, जून में 1.8% पॉजिटिव, जुलाई में 1% पॉजिटिव, ऑल टुगेदर 2.3% इन स्विंग ट्रेड एंड 4.7% इन एक्सपायरी ट्रेडिंग, 0 DT and 1 DT. All together 7% is gain what I made. So for me, if you'll ask me whether this is a good gain or not, see, अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपेटाइट, बिकॉज जो मैं रिस्क पहले लिया करता था जब मैं वीडियोस बना रहा होता था, उस वक्त से लेकर अगर अभी की कंपैरिजन में करूं, तो आई हैव चेंज्ड माय सिस्टम क्वाइट अ लॉट, एंड मैं बहुत रिस्क एवर्स हो गया, बहुत ही ज़्यादा, मीन्स इवन इन इंट्राडे माय वार वैल्यू एट रिस्क इज नॉट मोर देन लाइक 0.8%, 0.9%, मैक्सिमम इट गोज टू 1% लाइक दैट. ओके, दिस इज अ मैक्सिमम आई एम सीइंग. So for market to hit my 0.8% risk loss is not that is really गुड डील. ओके, मतलब जब तक मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिव, बहुत एक्सट्रीम एंड में नहीं होगा, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू गेट बिग हिट. एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट डीडी, जैसे मैंने अभी जस्ट यहाँ पे बताया, ये जो आपने डीडी देखा, ये वाला, ओके, ये रीजन इसमें ये है कि मैंने इसमें 2 स्विंग ट्रेड्स के लॉस भी बुक कराए. ओके, और एक कुछ 18K का लॉस हुआ, एक कुछ लाइक 14K के लॉस का बुक हुआ है मैंने, उसको मिला करके ये है. ठीक है, मीन्स ऑल टुगेदर 1% एसएल आई टुक इन स्विंग ट्रेड ओनली. स्विंग में मैं रिस्क रख रहा हूँ और स्लोली उसे मैं काफ़ी बढ़ाने वाला भी हूँ. ओके, अभी मैं क्योंकि टेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए 0.6 0.7% मैक्सिमम रिस्क आई गोज इन स्विंग ट्रेड्स. इन सब स्क्रिप्ट मैं 0.2 0.3 0.4% मैक्सिमम रिस्क लेता हूँ. स्विंग ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, सो यहाँ पे ये जो लॉस देख रहे हो आप, इट इंक्लूड्स 1% ऑफ स्विंग ट्रेड ऑल्सो. सो इवन आफ्टर दैट, इवन आफ्टर सच अ volatile budget trading session, and after that day also bank was horrible. Even after that I just lost 1.4% altogether in intraday trading. Okay, that is the reason मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिस्क एपेटाइट इतना कम कर रखा है, इतना कम अभी फिलहाल, कि मैं उसे बढ़ाऊंगा ग्रेजुअली, बट क्योंकि आई जस्ट केम आउट ऑफ माई लोवेस्ट जोन, आउट से मेरे से पैसे नहीं बन रहे थे. आई वॉज नॉट इन सिंक विद द मार्केट, थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड फॉर मी. सो आई थॉट ओके, आई विल टेक ब्रेक. I will see from the sideline what is going wrong and where I should just work on. Okay, and that is the reason मैंने पूरा risk appetite घटा दिया है. और even if after this taking this less risk appetite means यहाँ पे maximum DD मेरे को नहीं लगता कि I can even cross 3% of DD in the worst phase. मतलब मैं जिस तरीके का सिस्टम मैनेज कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, सो दिस इज फॉर वेरी हाई कैपिटल ट्रेड. ओके, जहाँ पे रिस्क एपेटाइट बहुत कैप्ड है. ओके, एंड एज आई जस्ट सेड कि यहाँ पे मैक्सिमम DD 3% को भी टच करना इज वोंट बी इजी. ओके, एट ऑल फॉर मार्केट टू टेक दैट थिंग. ओके, सो इस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ. तो अगर डीडी एक फेज के लिए मैं इतना छोटा रख रहा हूँ, सो इफ आई एम गेटिंग लाइक 2.5% मंथली, okay, so nothing else I can ask for. Okay, that is the risk reward I'm keeping as of now. So see, reward always depend on the risk that you are willing to take. At a point of time when I was willing to go for a DD of 6-7% also, although from the last 4 years I've never crossed 4.2% of DD. Okay, this is my past performance. और 4.2 भी मैंने 1 या 2 बार ही टच किया, उससे नीचे पे 3.5 के आसपास ही रहा है. तो that is what I does, but in my mind, subconscious mind, I was okay to even touch a DD of 6-7% when I was trading that point, that kind of trading. Okay, so वहाँ पे risk reward भी सही था. Almost 3% is what I was getting, 3.5 I was getting on monthly basis. But as of now, as my risk appetite has gone down quite a lot, so यहाँ पे अगर 2.5% भी average में बन रहा होगा, then I will be fine. और इससे मैं थोड़ा increase 100% करने वाला, not going to trade the same way. Okay, तो मैं वो भी आपको जब मैं वो करूँगा तो मैं वो explain कर दूंगा, but अभी फिलहाल के लिए ये है. And this is about this small account. Now मैं सिर्फ इसे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि there is one more account, this one, not one more, 2 more account, this one also. ठीक है, सो ये अकाउंट और ये अकाउंट, ओके, ये बिल्कुल सेम है. तो मैं इसका इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे अब बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा था पिछले 3 महीने से. आपको यहाँ पे ब्लॉक्स में कुछ ट्रेड्स दिख रहे होंगे. रीजन फॉर दैट सिर्फ टेस्टिंग here and there I was testing something else. Okay, और I actively started trading from budget day and that went horrible. तो उसमें कुछ 1% मैंने ऑल टुगेदर दे रखा है. ठीक है, तो आई एम शोइंग यू दिस. सी, आपको दिख रहा होगा मैंने कहीं पे ट्रेड्स कुछ नहीं लिया है, बहुत कम. ये सारे छोटे छोटे ट्रेड्स हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स हैं. ओके, लॉस भी एक ये बड़ा लॉस है ये, क्योंकि इलेक्शन डे का ट्रेड था. मैंने इलेक्शन डे एंड बजट डे दोनों बहुत अग्रेसिव गया था, बहुत अग्रेसिव इन ऑल माई अकाउंट्स, एंड आई गॉट हिट इन ऑल माई अकाउंट्स. सी, दिस इज द बजट डे 23rd of July. Here also I booked 22K loss, and this is election day I booked 35K loss. Okay, so these are the big loss for me. And इन दोनों को अगर आप मिला लो कुछ 1.5% का लॉस बनता है, बट ऑल टुगेदर आई क्लोज्ड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन 0.2% लॉस. 50 लाख का ये अकाउंट साइज है, ये हुआ या फिर सॉरी या फिर ये हुआ. ओके, सो इन दोनों का सेम है. इसको शो करने का रीज़न ये था कि अभी तक मैं इससे मैनेज नहीं कर रहा था एक्टिवली. अब जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वेंट थ्रू, क्योंकि यू नो दैट व्हेन यू स्टार्ट टेस्टिंग समथिंग यू हैव टू गो थ्रू सम डीडी. ओके, एंड दीज आर स्मॉल लॉस, 8,000 12,000 1,700. so these are thing, and today I gain like what almost 11K. so this is all about it. so यहाँ पे अब मैं एक्टिव हो गया हूँ.
वापस, और इन ऑल 3 अकाउंट्स आई एम 100% एक्टिव नाउ फ्रॉम हियर ऑन. सो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आई विल शो हाउ थिंग्स आर गोइंग, क्योंकि सिर्फ 1 मंथ का परफॉर्मेंस दिखाकर यहाँ से कोई फायदा नहीं है. ओके, यहाँ से मैं बहुत अग्रेसिव अब सारे में जा रहा हूँ. बाई सेइंग बहुत अग्रेसिव मीन्स एंट्री, बिकॉज टिल नाउ आई वाज नॉट एंटरिंग ओनली, बट अब मैं एंट्री करूँगा, एक्टिवली एंटर करूँगा. और जो मैंने सिस्टम अपने लिए बिल्ड किया है अभी, बहुत लो रिस्क एंड लो रिवॉर्ड वाला सिस्टम, वेयर इवन मेकिंग 2.5% विल बी मोर देन ओके फॉर मी. सो आई विल कंटिन्यू विद दैट फॉर 1 or 2 मंथ्स. उसके बाद आई एम गोइंग टू गो अग्रेसिव ऑल्सो. मैं अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ाऊंगा. मैक्स डी डी मैक्सिमम आई एम थिंकिंग ऑफ इज 4.5%. ओके, तो उस अकॉर्डिंग से मैं ट्रेड लूंगा, और दैट टाइम आई विल बी टारगेटिंग लाइक 3.5%. सो दिस इज द होल प्लान for the upcoming few months. उसके बाद I will tell you, and at the same time मैं swing trade सब सारे अकाउंट में लेने वाला हूँ, and even in equity script also, means cash stock also I will be taking entry. For that I have to keep on reshuffling my investment. Okay, so that is it about this about the update of these 3 accounts, and all other accounts also copy from these 3 accounts only. So whatever is happening in these 3 is what happening in all my clients account also. ठीक है, तो that is it. So last 3 months में मेरे पूरे R&D और जो भी मेरे को करना था वो सब मेरे इस अकाउंट में गया, and it was up to my expectation to be very honest. ठीक है, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था जिस तरीके का इसके अकॉर्डिंग, तो आई गॉट दैट रिजल्ट, एंड दैट इज द रीजन कि अब मैं उसे पूरा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ क्लाइंट्स अकाउंट में भी. अभी तक कुछ और ही कर रहा था, लेकिन अब वापस शिफ्ट करने वाला हूँ, जो मैं थरोली सभी में करने वाला हूँ. सो दिस इज द अपडेट आई वांटेड टू गिव. आई होप you got the glimpse of what is happening with my trading. And see, reason for doing all this thing, why I stopped trading in my main accounts, why I just continued in doing R&D and small account, was क्योंकि मैं बहुत lowest phase से गुजर रहा था, and I was not making money for the last 1 or 2 months. So I thought, okay, let it be here. Okay, come to the sideline, try to think what is going wrong, कहाँ पे गलती हो रही है. सी, इट्स नॉट लाइक आई वाज इन लॉस any period of time. If you'll see, I was not in loss. Okay, but break even for me is also a loss, because opportunity cost is quite high. Even if any month I'm closing like break even, so that month the opportunity cost for me is like 2.5%. Okay, so that also I was considering. So not even a single month I was in big loss. Okay, वो अभी जस्ट आपको मैंने दिखाया, मेन अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं. इसमें तो मैंने हर मंथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही किया है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे 2.5% ऑलमोस्ट पर मंथ बन रहा था. बट टॉकिंग अबाउट स्मॉल मेन अकाउंट, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा प्रॉफिट नहीं बन रहा था स्टार्टिंग में, और ब्रेक भी नहीं जा रहा. मेरे को लगा ठीक है, आई कैन अफोर्ड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 1 or 2 months, एंड विल कीप ऑन डूइंग R&D इन अ स्मॉल अकाउंट. और उसके बाद अगर मेरे को सही लगा, देन आई विल कंटिन्यू, आई विल पंप इन, and I will go all in all accounts. So that's what the plan was, and I more or less it was successful. And उसके बाद अब यहाँ से जो भी परफॉर्मेंस होगा मैं उसके अपडेट आपको बिल्कुल दूंगा. So yeah, this is about the trade update, what is going on with my all accounts, my clients account and all. Now अब यहाँ से मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो स्विंग ट्रेड्स पे होगा, जो मैं स्विंग ट्रेड्स ले रहा हूँ उस पे होगा, और कुछ और कंटेंट से रिलेटेड जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, यूजफुल हो, मैं कोशिश करूंगा वैसे वीडियोस भी बना देने का. ठीक है, सो या दिस इज द अपडेट अबाउट इट. आई होप एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू, you learned something, you got something out of it, and if you do, then please do like and subscribe to our channel. Thanks a lot, and bye bye.